A very good morning to all of you and wishing you all a very happy new year. Students, I am Sukriti, your new computer teacher, and from now I will be taking your computer classes. So students, as you all know that the pandemic is going on, so it's advisable that you please be at your homes and don't go outside unless it's an urgency. So now I will be teaching you chapter 10th of your book, that is Python, and here I will be teaching you about the control structures. So the topics that are covered here in this chapter are control structures, conditional control structures, loop control structures, break statement and continue statement. So now the first topic here is control structures. A program is a set of instructions which are executed in sequential manner. As you all know that a program, what is a program? Program is basically a set of instructions. In a program we have different instructions which are executed in sequential manner. Okay, these are performed in a particular sequence. In some situations we have to change the order of execution of the program. Okay, sometimes such conditions arise that we have to change the order of sequential execution of program, that is based on some conditions or repetition of statements until some conditions are met. ओके क्या होता है हमारे पास कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें हमें अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को उसके ऑर्डर को चेंज करना पड़ता है एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन कंडीशंस एंड रिपीटिशन ऑफ स्टेटमेंट्स. कई बार हमारे पास कुछ कंडीशंस आ जाती है, कई बार हमें क्या होता है हमें बार बार कुछ स्टेटमेंट्स को रिपीट करना पड़ता है जब तक हमें अपनी कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर लेते. Therefore, control statements are used to control or change the flow of execution. इसीलिए जो control statements होती है हमारे पास basically they help to control, they basically help in controlling and changing the flow of execution. वो basically control करते हैं and also change the flow of execution. So हमारे पास तीन तरीके की we have three basic control structures, that is sequential control structure, conditional control structure, and the third one is loop control. So now sequential control structure, as the name suggests, sequential control structure. Sequential means in a particular sequence. So a sequential control structure shows one or more actions following each other in order. एक sequential control structure क्या होता है? Basically it shows that आपके पास जितने भी actions हैं, like you have 5 actions, so वो जो 5 के 5 actions है एक program के अंदर, they will be executed in a particular sequence. वो one by one, एक के बाद एक के बाद एक करके ही execute होंगे. ठीक है, तो it's very easy टू रिमेंबर दैट अ सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर, उसके अंदर क्या होता है हमारे पास जितने भी हमारे पास एक्शंस हैं वो वन बाय वन एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर ही एग्जीक्यूट होंगे. सो एक्शंस इंक्लूड इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. एक्शंस के अंदर हमारे पास इनपुट होता है, प्रोसेस होता है एंड देयर इज एन आउटपुट. ऑल एक्शंस मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, दैट इज नन कैन बी स्किप्ड. जितने भी हमारे पास एक्शंस होते हैं वो सारे के सारे एक्शंस को एग्जीक्यूट करना पड़ता है एंड यू कैन नॉट स्किप एनी वन एक्शन. एग्जाम्पल ऑफ एक्शंस आर कैलकुलेटिंग टोटल्स. ए बेसिक एग्जाम्पल ऑफ एक्शन इज लाइक अगर आपको कोई भी टोटल करना हो, सो दैट इज़ अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल ऑफ सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर. द प्रोग्राम्स, जो भी आपने प्रोग्राम्स पढ़े थे पिछले वाले चैप्टर के अंदर, that they were following a particular control structure. Okay students, so the second one is conditional control structure. A conditional control structure tells the program which action to take based on certain condition. Okay, इसका जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, it is based on some conditions. कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर है तो इसका नेम ही सजेस्ट कर दैट इज बेस्ड ऑन सम कंडीशन. A conditional control structure tells the program which action to take based on certain condition. Like suppose आपका एक प्रोग्राम ऑलरेडी रन हो रहा है, ठीक है, एंड ऑल ऑफ सडन यू गॉट सम कंडीशन, तो आपका प्रोग्राम उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही रन होगा. कि लाइक अगर आपकी एक पर्टिकुलर कंडीशन आ जाती है तो उसके हिसाब से ही आपका प्रोग्राम रन होगा.
And the third one is loop control structure. The loop control structure enables a program to perform one or more actions repeatedly as long as a certain condition is met. तो जैसे कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, इट इज़ मेकिंग अ लूप. लूप मीन्स बार बार आपका एक बेसिकली एक साइकिल बन रहा है, बार बार आपकी कोई ना कोई स्टेटमेंट रिपीट होती रहेगी, कोई एक पर्टिकुलर एक्शन रिपीट होता रहेगा जब तक आपकी एक पर्टिकुलर कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती. So, the loop control structure enables a program to perform one or more actions. Like you have to perform an action. एक एक्शन को आपको एक या एक से ज़्यादा बार रिपीट करना पड़ेगा until and unless your condition is met or fulfilled. So till now what we have read about the different control structures that we use in Python programming. So first was sequential control structures. तो sequential control structure के अंदर हमने क्या पढ़ा कि जितनी भी हमारे पास जो actions है that are going in some kind of sequence. आपका जो भी चीज़ चल रहा है वो एक particular order के अंदर चल रहा है. Then the second was conditional control structure. तो वो आपको ये बताता है कि आपका जो एक्शन है वो किसी एक पर्टिकुलर सर्टेन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका वो चेंज हो जाता है. एंड द थर्ड वन वाज लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर. तो आपके उसके अंदर क्या करना है, आपका कोई भी प्रोग्राम एक एक्शन को एक से ज़्यादा बार परफॉर्म करेगा जब तक आपकी एक पर्टिकुलर कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती. सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंडेंटेशन इन पाइथन. Python programs get structured through indentation. So Python की प्रोग्रामिंग के अंदर आप उसकी जो स्ट्रक्चरिंग है इंडेंटेशन के थ्रू करते हो. अब इंडेंटेशन क्या है? दैट इज कोड ब्लॉक्स आर डिफाइंड बाय देयर इंडेंटेशन. जो भी आप कोड ब्लॉक्स लिखते हो, जो भी आप कोड लाइन्स लिखते हो, दैट आर डिफाइंड बाय इंडेंटेशन. All the statements and conditional and looping statements are structured using indentation. जो भी आपकी स्टेटमेंट्स होती है वेदर इट इज़ अ कंडीशनल और लूपिंग स्टेटमेंट, सो दीज टू टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर स्ट्रक्चर्ड यूजिंग इंडेंटेशन. वो इंडेंटेशन के थ्रू उनकी स्ट्रक्चरिंग होती है, ठीक है, रादर देन यूजिंग कर्ली ब्रेसेस. सो इन पाइथन वी डोंट यूज कर्ली ब्रेसेस फॉर स्ट्रक्चरिंग एनी स्टेटमेंट. Okay, as I think you must be knowing that in C language we use curly braces for structuring, but in Python we don't use curly braces for structuring. Here the structuring is done through indentation. This principle makes it easier to read and understand other people's Python code. So through the use of indentation, it is very easy for any person to read and understand any other person's code. Leading white space, that is spaces and tabs at the beginning of a logical line, is used to compute the indentation level of the line. Okay, indentation हम यहाँ पाइथन में कैसे देते हैं? वी यूज स्पेसेस एंड टैब्स. हर एक लाइन के आगे हम स्पेस एंड टैब्स का यूज़ करके एक इंडेंटेशन प्रोवाइड करते हैं, एंड विच इन टर्न इज़ यूज टू डिटरमाइन द ग्रुपिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, जो फर्दर आपको हेल्प करता है बताने में कि आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी ग्रुपिंग कैसे हुई हुई है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंडेंटेशन. इन पाइथन बेसिकली वी यूज इंडेंटेशन फॉर structuring the program, and we don't use curly braces. So now we come to the next topic, that is conditional control. So in conditional control structures we have a number of situations where we may have to change the order of execution of statements based on certain conditions. Okay, so there arises many situations in which we have to change the order of execution of statements that is based on certain conditions. आपका कोई प्रोग्राम चल रहा होता है and all of a sudden some situations arise that you have to change the order of the statements, and these are based on certain conditions. This involves a kind of decision making. So जब भी ऐसी कोई situation आती है तो उसके अंदर आपको एक kind of decision लेना पड़ता है to see whether a particular condition has occurred or not, and then direct the computer to execute certain statements accordingly. So like आपका एक प्रोग्राम चल रहा है and all of sudden आपकी condition arise हो गई
सो आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपने प्रोग्राम को उस अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करना पड़ता है कि आपकी वो कंडीशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से फुलफिल हो जाए. When a program breaks the sequential flow and jumps to another part of the code, it is called branching. Like suppose आपका प्रोग्राम चल रहा है, sequential flow में आपका प्रोग्राम चल रहा होता है, and all of a sudden it has to take a step that it has to jump from one part of the code to another part of the code. So इस situation को हम बोलते हैं branching. Like from like when you're in your program, एक पार्ट ऑफ द कोड से आपका प्रोग्राम दूसरे पार्ट ऑफ द कोड में जब आके जंप करता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रांचिंग. व्हेन द ब्रांचिंग इज बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर कंडीशन, इट इज़ नोन एज कंडीशनल ब्रांचिंग. तो अगर आपकी ब्रांचिंग एक पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर बेस्ड होती है तो उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं कंडीशनल ब्रांचिंग. एंड इफ द ब्रांचिंग टेक्स प्लेस विदाउट एनी डिसीजन, देन इट इज़ नोन एज अनकंडीशनल ब्रांचिंग. तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ी. दैट इज़ अगर आपकी जो ब्रांचिंग है एक पर्टिकुलर कंडीशन पे बेस्ड है तो उसको हम बोलेंगे कंडीशनल ब्रांचिंग. एंड इफ इट डज नॉट हैज़ एनी डिसीजन, वो कैसे भी हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे अनकंडीशनल ब्रांचिंग. Python language possesses such decision making capabilities. Okay, Python language के आप पास अब बहुत सारी एबिलिटी होती है. That is, it has a decision making capability and it supports the following statements known as control or decision making statements to implement branching. So branching को implement करने के लिए it has control and decision making statements. For example, if else, nested if, elif and looping, etc. So now the if statement. The if statement is a powerful decision making statement and is used to control the flow of execution of statements. तो जो आपकी if statement होती है, that is a very powerful decision making statement and it helps to control the flow of execution of statements. This statement is used to execute one or more statements depending on whether a condition is true or not. तो इस स्टेटमेंट के अंदर हम एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं एंड दैट टोटली डिपेंड्स ऑन कि वेदर आपकी कंडीशन ट्रू है या फिर वो फॉल्स है. सो लेट्स सी सिंटेक्स. सिंटेक्स मीन्स कि आप कैसे एक प्रोग्राम को लिखोगे. अगर आपके पास इफ स्टेटमेंट है तो उसका क्या सिंटेक्स होगा. अगर सपोज फर्स्ट द कंडीशन इज टेस्टेड, लाइक सपोज कोई कंडीशन है, अगर पहले उस कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा, ठीक है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है, इफ दैट कंडीशन इज ट्रू, ओनली देन द स्टेटमेंट आफ्टर कॉलन आर एग्जीक्यूटेड. लाइक जैसे सिंटेक्स में शो कर रखा है इफ के आगे एक पर्टिकुलर कंडीशन है, ठीक है, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो कॉलन के बाद जो भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखी हुई है वो आपकी एग्जीक्यूट होगी. ठीक है, तो एज यू नो दैट द पेंडेमिक इज गोइंग ऑन एंड यू सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर मैं आपको सिर्फ अभी थेरेटिकल पोर्शन करा रही हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल पोर्शन. सो अभी आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द थेरेटिकल पोर्शन. सो अभी जो सिंटेक्स और जो एग्जाम्पल्स हैं इनको हम बाद में कवर करेंगे. ठीक है, तो अभी सिर्फ आप समझ लीजिए कि व्हाट इज़ अ स्टेटमेंट, व्हाट इज़ इफ़ स्टेटमेंट. ठीक है, तो इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास सिंपल क्या होती है, अगर हमारे पास कंडीशन कोई ट्रू हो जाती है, ओनली देन जो उसकी इफ़ की स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट होती है. अगर इफ़ की स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपकी वो जो स्टेटमेंट है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी. ओके, एंड देन द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द इफ़ एल्स स्टेटमेंट. जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट होती है दैट इज़ बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ द सिंपल इफ़ स्टेटमेंट. ओके, इफ़ स्टेटमेंट में हमने सिंपली क्या सीखा था, अगर हमारे पास इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारे पास इफ़ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी. तो बेसिकली इफ़ एल्स जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये इसी का एक एक्सटेंशन है. ठीक है, तो अब इसमें हम देखते कि क्या है. द इफ़ एल्स स्टेटमेंट इवेल्युएट्स टेस्ट एक्सप्रेशन एंड विल एग्जीक्यूट बॉडी ऑफ इफ़ ओनली व्हेन टेस्ट कंडीशन इज ट्रू. तो इसके अंदर भी वही सेम चीज़ है कि हमारे पास
हम बॉडी ऑफ इफ़ को तभी एग्जीक्यूट करेंगे जब हमारे पास टेस्ट कंडीशन ट्रू आएगी। अगर हमारे पास इफ़ कंडीशन, इफ़ टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू आएगा, ओनली देन द बॉडी ऑफ इफ़ विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स आती है इफ़ की, तो हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो एल्स की बॉडी का एग्जीक्यूशन होगा। And in this, indentation is used to separate the blocks. So now we go to the elif else statement. So students, this is all for today. I hope कि आपको समझ में आया होगा। हमने बहुत सारे टॉपिक्स आज कवर कर लिए हैं। So we will cover the remaining topics in the next video. So I will suggest you that you just go through the chapter once again. Okay students, so we'll meet in the next class. Till then, take care and be safe at your homes. Thank you.